बहन जी कितनी शांति है यहाँ पे. So sometimes we will come to a place where there's no noise and they say, oh, there is so much peace here. No, they वो गलत समझ रहे हैं और शांति को नहीं समझते. No, they have they don't understand what peace is. तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब कुछ है, There are many people, they have everything. So I was just thinking, one of the most precious commodity for a human today is peace and rest. तो एक मनुष्य के लिए जो सबसे कीमती वस्तु है आज वो शांति और विश्राम है. हाँ, प्रॉपर्टी है, रात को नींद नहीं आती. They have so much property but they cannot sleep at night. इतना पैसा है मगर नींद नहीं खरीद सकते उस पैसे से. They have so much money but they cannot buy any sleep with it. आप जानते हैं रात को एक अच्छी नींद लेना एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की तरफ से. You know, to be able to sleep peacefully at night is such a big blessing from God. बाइबल कहती है वो अपने प्रिय को, बिलवेड को इंग्लिश बाइबल कहती है, सेंतमेंत में नींद देता है. The Bible says he gives sleep to his beloved. मतलब आपका सर तकिए में गया, So your head hits the pillow and you're off. you don't have to toss and turn on your bed. आपको बिस्तर में करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. He gives sleep to his beloved. वो अपने प्रियजनों को नींद देता है, चैन की. तो जितनों को नींद नहीं आती ना, So all those who are not able to sleep, अपने आप को प्रिय जानना समझने लग जाओ कि मैं उस परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी हूं. so come to that place where you start to know that you are a beloved son, a beloved daughter of God. और एक जो भावना, सारी भावनाओं में से सबसे वर्स्ट भावना है जो एक इंसान अनुभव कर सकता है, और वो भावना है भय, फियर. And the worst feeling any human can experience is fear. मगर जो भय है या जो डर है वो केवल एक भावना नहीं, बाइबल बताती है वो एक आत्मा है. But fear is not just a feeling or an emotion. The Bible says it's a spirit. Fear is a spirit. Fear is spiritual. आप जानते हैं भय आत्मिक है. Fear is spiritual. भय आत्मिक है. Fear is not natural. भय स्वाभाविक नहीं है. Fear is spiritual. भय आत्मिक है. But just because something is spiritual doesn't mean it's good. लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ आत्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा है. For God, 2 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear. God has not given us the spirit of fear. दूसरा तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है. परमेश्वर ने नहीं दिया भय का आत्मा, मगर किसी और ने तो दिया है. God has not given it, but someone else has. So when Bible has to define fear, the Bible is not just saying that it's just an emotion. जब बाइबल को भय की परिभाषा देनी है, बाइबल ये नहीं कि कोई भावना है. So that means fear is a spirit. इसका मतलब भय एक आत्मा है. That means there is a personality that is trying to induce fear in your heart. एक व्यक्तित्व है जो आपके दिल में भय डालने की कोशिश कर रहा है. भय, fear is terrible. भय बहुत ही बुरा है. One of the worst things you can experience. सबसे खराब भावनाओं में से है जो आप कभी Fear becomes great fear. भय महान भय बन जाता है. And when you meditate on fear and it becomes great fear, it starts to attract what you fear. और जब वो भय महान भय बन जाए तो वो अपनी ओर आकर्षित करने लगता है उन बातों को जिनसे आप डरते थे. मेरा लॉस ना हो जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, और क्या होता है? Oh, that I won't suffer loss, and in the end they suffer loss. आप सोचो, आप एक दुकान में गए, Think और about this. आपने कहा, एक जूस की दुकान में आप गए और आपने कहा मुझे मैंगो शेक नहीं पीना. So you went to a juice shop and you said, I don't want mango shake. ध्यान से मेरी बात सुनना. Hear me carefully. मुझे मैंगो शेक नहीं पीना. I don't want mango shake. दुकानदार ने कहा ठीक है बहन जी, क्या पीना है? The shopkeeper said, okay, what do you वो want? मुझे नहीं पता. You said, I don't मुझे want. मैंगो शेक नहीं पीना. I don't know what I want, but I don't want mango shake. आप चले गए वहां से. You went from there. अब जब आप दोबारा आए वहां पे, When you came back again, तो उसको क्या याद आएगा आपको देख के? what will he think? हाँ? Remember when he sees you. मैंगो शेक जो He will- आपको नहीं पीना. He will remember mango shake which you don't want.
Many of your prayers are what you don't want. आप में से बहुतों की प्रार्थना ये है जो आप नहीं चाहते कि आपको मिले. The content of your prayer is what you don't want. आपकी प्रार्थनाओं का मुद्दा वो है जो आप नहीं चाहते आपको मिले. So you are not praying out of faith, you are praying out of fear. तो आप विश्वास से प्रार्थना कर ही नहीं रहे, आप तो भय से प्रार्थना कर रहे हैं. प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, लॉर्ड आई डोंट वांट दिस, मुझे ये नहीं चाहिए. आई डोंट वांट और दिस. आत्मिक जगह में एक ही ध्वनि गूंज रही है जो आपको नहीं चाहिए. In the spirit world there is only one sound that is echoing and that is what you don't want. यीशु जब लोगों के पास गया उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं. When Jesus went to people he said, what do you want that I should do for you? इसीलिए कई लोग आज तक नहीं समझे सही तरीके से प्रार्थना कैसे करनी है. That's why many people still don't understand how to pray correctly. Because hear this, there is a spiritual principle, whatever you focus on you get attached to. एक आत्मिक सिद्धांत है जिस किसी बात पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उससे आप जुड़ जाते हैं. एक प्रार्थना कर दो इस महीने लॉस ना हो. Oh, pray for me that I would not have lost this month. अरे जितनी एनर्जी ये प्रार्थना करने में लगा रहे हो उतना ये प्रार्थना करो कि प्रभु इस महीने मेरा बिजनेस अच्छे से जाए. So as much energy you are putting in praying that I would not have lost, put equal energy in praying that your business will be well this month. So कई लोग हैं जो कह रहे हैं 50 साल से मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, और समझ में नहीं आ रहा घर पूरा मैंगो शेक से क्यों भरा हुआ है. And there are many people who are praying for 50 years, I don't want mango shake, and their house is filled with mango shake. Because पूरी प्रार्थना का कंटेंट मैंगो शेक, और मैंगो शेक आपके लिए क्या है आपको पता है. Because their entire prayer content is mango shake and you know what that is for you. Faith is the substance of things hoped for, not the things you don't want, the things you hope for. Faith is the substance of things hoped for. विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय है, उनका नहीं जो आपको नहीं चाहिए. Now hear this. सुनिए, This is my definition. ये मेरी परिभाषा है. Okay. So fear is the substance of things dreaded for or which you do not want. भय You उन are बातों hoping it would not happen, but still the subject is that's problem. भय उन बातों का निश्चय है जिनसे आप बहुत घबराते हैं और चाहते हैं आपके साथ ना हो, जिनकी आप आशा नहीं करते. कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो आपको आज बात बता रहा हूं. प्रार्थना करो हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए. Oh, pray that our kids would not be spoiled. पूरी प्रार्थना क्या है? मैंगो शेक. Entire prayer is mango shake, जो नहीं चाहिए. which you don't want. अरे प्रभु कह रहा है भाई क्या चाहिए. The Lord is saying, what do you want? आप एक रेस्टोरेंट में गए जहां पे सब कुछ है, You go to a restaurant, they have और आप कह रहे everything. नहीं मुझे बटर चिकन नहीं खाना. You say, I don't want butter chicken. Okay, अच्छी बात है, बटर चिकन नहीं The खाना. waiter says, okay, क्या खाना है? what do you want? मुझे बटर चिकन नहीं खाना. I don't want butter chicken. क्या खाना है? What do मुझे you want? बटर चिकन नहीं I खाना. don't want butter chicken. और तब थोड़ी टाइम में आपके टेबल में बटर चिकन आ गया. And after some time, you have butter chicken on your table. क्यों? उसने किसी और को बोला उसे बटर चिकन नहीं खाना, उसने सुना इनको बटर चिकन खाना है और बटर चिकन आ गया. Because he went and told someone they don't want butter chicken and they Because heard what they was want the butter chicken. content in the conversation? क्योंकि पूरी बातचीत में क्या मुद्दा था? कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? Faith gives substance to the things you hope for. जिन बातों की आप आशा कर रहे हो, विश्वास उनको निश्चय देता है, ठोस पदार्थ देता है. अच्छी बातों की आशा. बोलो किसकी आशा? Hope for good things. This word hope comes from the Greek word elpis. ये elpis शब्द से आता है जिसका मतलब है कुछ अच्छा होने जो वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कुछ अच्छा जो होने वाला है. So something good that is about to happen, you're waiting expectantly for that to happen. That is hope. The word elpis. मगर आपको समझना पड़ेगा कि जो आत्मिक जहां है, जो परमेश्वर ने लॉज या सिद्धांत बनाए हैं वो इम्पर्सनल हैं, वो कैसे बोलेंगे, व्यक्तिगत नहीं है. जैसे मिट्टी जो है ना, मिट्टी के अंदर ये इंटेलिजेंस नहीं है कि किस बीज को एक्सेप्ट करना है, किस बीज को रिजेक्ट करना है. मिट्टी को परमेश्वर ने बनाया, जो बीज डालोगे, नीम का बीज डालोगे तो नीम का पेड़ आएगा, आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ आएगा. आपका बीज डिसाइड करेगा कौन सा फल आप खाओगे. So the laws that God has made are not, they are impersonal.
they are not fixed to a person. So it's like the soil, the kind of seed you put, the kind of produce it will give you. आप ये नहीं कर सकते कि जिंदगी भर आप नीम बो रहे हो और परमेश्वर को कह रहे हो उसके बगीचे में आम है, मेरे बगीचे में आम क्यों नहीं है? You can't be sowing the seed for a neem tree and expect a mango tree in your garden, and you're telling God, why does he have और mangoes? आप प्रार्थना कर रहे हो और उपवास कर रहे हो और आप कह रहे हो वो तो इतनी प्रार्थना उपवास नहीं करता, And you are- मैं तो प्रार्थना उपवास करता हूं, मेरे खेत में नीम क्यों, उसके खेत में आम क्यों? And you're praying and fasting and you're saying, I pray and fast so much, he doesn't even pray and fast. Why does he have mangoes and I don't? Because the Bible says with all you're getting, get what? Understanding. क्योंकि बाइबल कहती है अगर कुछ पाना ही है तो समझ को पाले. क्या चाहिए? यानी उपवास प्रार्थना बिना समझ के क्या है? धर्म कर्म के काम. Fasting and prayer without understanding is religious works. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपके उपवास प्रार्थना से वो नीम का बीज आम नहीं उगाएगा. Because your fasting and prayer will not make the neem tree bring forth mangoes. उस उपवास प्रार्थना से प्रभु ये जरूर कर सकता है कि बुद्धि समझ दे दे कि आप फिर आम का बीज डालने लग जाओ खेत में, तो फिर आपके भी आम के. Through that fasting prayer, maybe God will give you wisdom that you will start to sow mango seeds so you can have fruit of See, mango. कई मसीह आज क्योंकि आत्मिक सिद्धांतों को नहीं जानते, वो उपवास प्रार्थना को जादू की तरह लेते हैं. Many believers, they don't understand the principles of God, so they take fasting and prayers like magic. और 40 दिन के उपवास में चल जाओ, जो चाहिए प्रभु से मिल जाएगा. Or go in 40-day fasting, whatever you want, God will give you. या हाथ मरोड़ मरोड़ के. ठीक है, एक बात ध्यान से सुनना मेरी बात. Hear me carefully. उपवास प्रार्थना हठ योग नहीं है. हठ योग समझते हो? कई बंदे खड़े हो जाते हैं कि जब तक नहीं मिलेगा ये मेरा प्राण है, तो हट करके परमेश्वर के राज्य में हट जिद्दी बच्चे करते हैं. समझदार बच्चे जानते हैं पिता को कैसे खुश करना है. तो हमें समझदार बच्चे बनना है. हट करके नहीं प्रार्थना का उत्तर पाना है, विश्वास के द्वारा जो पिता को प्रसन्न करता है उसके द्वारा अपनी प्रतिज्ञाओं को उत्तर पाना है. So fasting and prayer is not hunger strike. You cannot be arrogant about what you want and you're going to fasting to get that. No, the wise children of God, they know how by principles of faith they can receive what the Father has kept for them. Amen. इसीलिए तो इतने मसीह हैं, कई सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा आज तक क्या प्रॉब्लम क्या है. There are believers fasting since years and they don't understand what the problem is. वो सोचते हैं परमेश्वर का कान बंद है हमारी दुहाई के से. They think God's ears are shut to our असली cries. ये है उनका कान बंद है परमेश्वर की आवाज के लिए. The truth is their ears are shut to God's voice. परमेश्वर का कान बंद नहीं है. God's ears are not shut. वो कह रहा है नीति वचन 4:20 में, हे मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, पुत्र पुत्री दोनों आएगा इसमें, हे मेरे पुत्र या मेरी पुत्री, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन. He's saying in Proverbs 4:20, my son, my daughter, hear my words intently, carefully. That's the problem. People are trying to twist God's hand. लोग परमेश्वर का हाथ मरोड़ने में लगे हुए हैं. सिद्धांत को आपको समझना है. You have to understand principles. जैसे विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, As faith pleases God, वैसे ही डर शैतान को प्रसन्न करता है. वो फेवरेट है उसका. similarly fear pleases the devil. It's his favorite. अगर आप डरते हो, कहता है ये है मेरा भक्त. If you are someone who lives in fear, he says, this is my devotee. क्या कहा मैंने, याद रहेगा आपको? जैसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है, भय या डर किसको प्रसन्न करता है? शैतान को. As faith pleases God, fear pleases the devil. क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास का पिता है या जनक है या जनने वाला है, वैसे ही शैतान भय का पिता है, उसका जनक है, उसका जनने वाला है. As God is the author, the father of faith, similarly devil is the one that brought forth fear. अब मैं आपको दिखाता हूं क्यों कई धर्मी लोग हैं जिनका जीवन बिल्कुल A1 है परमेश्वर के सामने. मैं कर्म से कोई नहीं खड़ा हो सकता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मगर मैं कह रहा हूं वो विकेड नहीं है, एक खराई से चलते हैं परमेश्वर के सामने, मगर तब भी आप देखोगे क्यों इतनी परेशानियों में है, क्योंकि वो एक सिद्धांत को नहीं समझते. और आज हम उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे. So there are many righteous people today that walk uprightly before the Lord. I'm not talking about works, but they walk
with integrity before God, but their life is not right. And I'll tell you why, because of principles. हम देखते हैं, आप जानते हैं बाइबल में एक जोब, आयूब नाम का व्यक्ति था, बहुत फेमस है. There was a man named Job in the Bible. He's very famous. और हम जानते हैं परमेश्वर उसके बारे में ये गवाही देता है कि वो एक राइचस या धर्मी व्यक्ति था. And we know God testifies of Job saying he was a righteous man. मगर हम देखते हैं जोब के साथ क्या हुआ. And we see what happened to Job. मगर एक चीज जो हम कई बार मिस कर देते हैं जोब की पुस्तक में, वो ये है कि कैसे शैतान को ये एक्सेस मिला जोब के जीवन में ये करने का. But one thing we miss is how the devil got the access into the life of Job to do what he did. ओके, लगाइए जोब 3:25, आयूब 3:25 और देखते हैं ये जोब के अपने शब्द हैं. जोब क्या बोल रहा है? And these are the words of Job himself. Let's see what he's saying. क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है. तो जोब की एक प्रॉब्लम थी. जोब कह रहा था मैंगो शेक नहीं चाहिए, मैंगो शेक नहीं चाहिए, मैंगो शेक नहीं चाहिए. और क्या मिल रहा है जोब को? मैंगो शेक, मैंगो शेक, मैंगो शेक. For the thing I greatly feared has come upon me, and what I dreaded has happened to me. So Job's problem was he was saying, I don't want mango shake, I don't want mango shake, and his life Hear was this. filled with mango shake. Fear starts with a simple thought. भय एक साधारण विचार से शुरू होता है. और अगर आपने उसको कास्ट आउट नहीं किया और आप उस पर मनन करने लग गए या ध्यान करने लग गए और उसको बार बार सोचने लग गए, दिस टाइनी फियर which came as a tiny fear will start to grow and will become great fear. जब एक छोटा सा विचार आपको आया और अगर आप उस पर मनन करने लग गए, अगर आप इफ यू स्टार्ट केप्ट ऑन पॉन्डरिंग ऑन इट, वो छोटा सा विचार एक छोटा सा भय महान भय बन जाएगा. और जब वो डर का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एक व्यक्ति के अंदर बन जाता है, And when there is a stronghold of fear in तो वो anyone's ना life, चाहते हुए भी अब उसके अंडर आ जाता है. now even if they don't want, they still live under that fear. That's when such people need help of others, other believers. तब ऐसे विश्वासियों को दूसरे विश्वासियों की आवश्यकता पड़ती है. Because हल्के